Hello everyone, good morning. Okay, so in the last session, we have discussed about test case writing, right? How to prepare test cases for any functionality, any smoke scenario, or any kind of UI, right? So generally, whenever we perform functional testing, it is important to focus on, the UI part. Graphical user interface testing is important. Based on that, we can test the functionality of the software application, right? So from today onwards, we'll be starting with the non-functional testing process. So basically, non-functional testing, it's all about a quality attribute. Okay, what the point we have discussed so far? We have discussed only UI testing. Okay. So first of all, non-functional, it's all about a quality attribute. In general, in a real-time environment, you will be getting a specialized team to perform non-functional testing. So at a fresher level, you will be not responsible to conduct or perform any non-functional testing type, right? But still, few topics are important to cover. You should know how exactly we can test any performance, any usability, any particular compatibility configuration of a given software application. Okay, for based on their certain requirements. So, first of all, you need to understand what type it is, and then how we can simple test that application based on that type. So again, guys, non-functional follows separate process. Okay, in real time, let's say to conduct performance testing, security testing, you will be getting separate test plan. Based on the plan, based on the special requirement for that non-functional, testing process, you will prepare your test cases, you will test that application. So non-functional, it's all about a quality attribute. Very first, we'll be discussing like there are different characteristics of the software we can validate. So where performance, security, UI usability, these points or these types generally comes. Even we can test configuration compatibility also. So it is time to understand as per the category different types of testing which comes under non-functional. Very first, what we can test related to user interface. There are two types, UI testing and usability testing. UI testing, it's all about graphical user interface. So whenever you can observe any page, any application, right? And whatever the controls you will notice, those controls, nothing but text boxes, link, drop down, button, these kind of graphical user interface we can validate. And that is called UI testing. The UI testing majorly focus on the graphical user interface and their, simple functionality, like how it exactly it is working. Let's say whenever you are dealing with any kind particular text box, what we are expecting, this is a text box. So basic functionality is what? Whenever you try to enter something, it should be accept that data. Basically, text box should be editable. See, in general, whenever you test any field, you need to observe that whether that field is editable, somewhere whether that field is displayed or not on that particular page, correct? This is also important for testing. ओके अगर आप इंटरेक्शन करोगे चेक बॉक्स के साथ या कोई भी रेडियो बटन, राइट? इन जनरल व्हाट एक्शन वी नीड टू सिंपल परफॉर्म, सी टू चेक सर्टेन प्रोसेस वी डू क्लिक. अगर आप क्लिक करोगे तो क्या होगा? द चेक बॉक्स गॉट चेक, रेडियो बटन गॉट सिलेक्ट. तो यहाँ पे आप टेस्ट कर सकते हो कि वेदर दीज टू फील्ड्स आर सिलेक्टेड. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ये जो बेसिक रूल मैंने एक्सप्लेन किया है, एडिटेबल, ओके, वेदर इट इज डिस्प्लेड, वेदर इट इज सिलेक्टेड, these things you will learn in automation also, because in automation we have a different methods for a testing. But for now just understand in terms of manual testing कि जब मैन्युअली आप टेस्ट करते हो तो आपको चेक करना है कि व्हाट टाइप ऑफ फील्ड इट इज एंड विच एक्शन वी कैन सिंपल परफॉर्म ऑन दैट फील्ड एंड व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम दैट फील्ड. एग्जाम्पल, टुमारो अगर कोई एप्लीकेशन में आपको मेनू मिलेगा या कोई भी ड्रॉप डाउन, तो व्हाट इज द बेसिक फंक्शनैलिटी ऑफ अ ड्रॉप डाउन? ड्रॉप डाउन है मतलब मल्टीपल ऑप्शंस रहेंगे, सपोज ए बी सी, राइट? द बेसिक फंक्शनैलिटी इज व्हाट? यू नीड टू चेक दैट in drop down whether we are able to select any specific record or any specific option. अगर मैंने ऑप्शन बी को चूज किया, राइट, तो इट शुड डिस्प्ले दैट बी गॉट सिलेक्टेड. अगेन ड्रॉप डाउन इज यूज फॉर सिलेक्शन पर्पस. तो एज पर दिस फंक्शनैलिटी वी गाइज आर एबल टू प्रिपेयर टेस्ट केसेस. तो सबसे पहले
बेसिक व्यू को हम टेस्ट करेंगे कि वेदर यूआई इज अवेलेबल ऑन दैट पेज, whatever UI you are expecting from that software application, requirement के base पे, right? Those UI should be available on that page. And this is how we conduct UI testing. So UI generally talks about graphical user interface. But what then usability means? देखो usability ये quality attribute है, right? It is all about where we can check ease of use of application, ease of use of application for the user. How easily any user is able to access that feature, how easily any user is able to access that particular, graphical user interface, that we can test. So there is a thin layer difference between both. UI testing focus on graphical user interface, but same interface, how quickly, how easily you guys are able to access, that we can test with the help of usability. तो यूजर इंटरफेस में कल हमने ये देखा था कि यस, यूजर इंटरफेस में जब हम यूआई टेस्टिंग करते हैं तो एप्लीकेशन यूआई यू कैन वैलिडेट इन टू डिफरेंट वेज. एक होता है कमांड लाइन इंटरफेस, सेकंड होता है ग्राफिकल. इन जनरल वी आर रिस्पॉन्सिबल टू टेस्ट ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, बट कमांड लाइन का मतलब होता है समटाइम्स वी आर पासिंग कमांड टू द सॉफ्टवेयर एंड सॉफ्टवेयर इज सिंपली रिटर्निंग यू दैट रिजल्ट, देन इट कम्स अंडर कमांड लाइन. बट हर सॉफ्टवेयर को आप कमांड लाइन से टेस्ट नहीं कर सकते. दैट्स द रीजन. व्हाट इज अ बेस? बेस इज अ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, so through which user can interact with the software application, and it is possible with the help of control. तो जितने भी कंट्रोल्स आप देख सकते हो एप्लीकेशन में, यू कैन वैलिडेट ईच एंड एवरी कंट्रोल एंड देयर फंक्शनैलिटी ऑल्सो. तो इसीलिए मेनू, बटन्स, आइकन्स, ऑल टाइप ऑफ बार्स, राइट, टूल बार, मेनू बार, any dialog boxes, header, footer, everything you can test, and that comes under graphical. So first of all, your main focus is that UI should be accessible, UI should be working. If it is so, then we can continue with the other functional part, non-functional part. So when it comes to the functional part, you can validate certain functionality. But जब non-functional की बात आती है तो आपको टेस्ट करना है how easily you guys are able to access that UI. तो जनरली यूआई टेस्टिंग में कॉमन सिनेरियोज है, जैसे कि आप कोई फील्ड का फॉन्ट साइज, बैकग्राउंड, फोरग्राउंड कलर आप चेक कर सकते हो, राइट? हेडर, फुटर्स यू कैन वैलिडेट, फ्रेम्स यू कैन टेस्ट, टैब सीक्वेंस यू कैन वैलिडेट. आपके एप्लीकेशन में जितने भी कंट्रोल्स है उनका अलाइनमेंट, पोजीशन आप वैलिडेट कर सकते हो. consistent look we are expecting, right, for similar functionalities, for some common functionalities throughout the application, that we can test. Screen resizing option we can test, right? Maximize, minimize, this kind of things we can test, and that is in general called UI testing. But then what is usability? As per the definition, it is a process of testing ease of the use of application for the user. Means how quickly, how simple user is able to access that application, that we can validate. तो यूजेबिलिटी में टेस्टर का रोल क्या रहेगा? देखो, in usability testing, tester tests whether the application is user friendly or not by checking how easily user can access that application. Example guys, a very simple example. Let's say you are trying to install any software application. तो अगर आप प्रोसेस को वैलिडेट करते हो कि वेदर दैट सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन इज प्रॉपरली इंस्टॉल्ड और नॉट, दैट मीन्स यू आर टेस्टिंग व्हाट? फंक्शनैलिटी, कि प्रॉपरली वो इंस्टॉलेशन प्रोसेस काम कर रहा है, नहीं कर रहा है, राइट? बट हाउ स्मूथली यूजर इज एबल टू install that software application in the machine or in the device, how simple user is guided with all the kind of controls and the process. जैसे कि हम देखते हैं ना, कोई भी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हो तो you have to click on next, you have to agree the agreement, again you will click on next, check the position like storage कि कहाँ पे आपका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होगा. तो प्रोसेस शुड बी सिंपल. मतलब दो कंसेप्ट मैं आपको बताना चाहूंगी कि जब हम वैलिडेट करते हैं कि सॉफ्टवेयर इज इंस्टॉल्ड, ओके लेट मी राइट अगेन, सॉफ्टवेयर इज इंस्टॉल्ड और नॉट, ये टेस्टिंग हुआ फंक्शनल पार्ट, राइट? कि वेदर इट इज फंक्शनैलिटी इज वर्किंग और नॉट. बट हाउ इजीली यूजर इज एबल टू इंस्टॉल अ सॉफ्टवेयर, ये क्या हुआ? व्हाट इज दिस? दिस इज कॉल्ड यूजेबिलिटी. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दोनों में डिफरेंस है.
जब हम टेस्ट करते हैं कि ओके फाइन, जब हमने प्रोसेस फॉलो किया, माय सॉफ्टवेयर शुड इंस्टॉल ऑन द मशीन, ओके दैट्स कॉल्ड फंक्शनल टेस्टिंग। अब यहाँ पे ये एंट्री पॉइंट हुआ है, तो आप इसको स्मोक भी बोल सकते हैं, राइट, बिकॉज स्मोक इज नथिंग बट द बेसिक फंक्शनल टेस्टिंग, जहां पे हम क्रिटिकल पार्ट को कवर करते हैं, द इंपॉर्टेंट फीचर। तो दैट्स अगेन कम्स अंडर स्मोक, कम्स अंडर फंक्शनल। बट इफ यू आर चेकिंग दिस, okay, how easily any user is able to install a software on the machine, then it comes under usability. Means what we are expecting, user should guided, right, user should guided with process properly, there should be control, like next process should be available, जो भी process होता है ना, that should be very very easy, then it comes under usability. तो try to understand difference. फंक्शनैलिटी वाइज अगर टेस्टिंग करते हो तो वो फंक्शनल टेस्टिंग हुआ, बट अगर आप प्रोसेस वाइज टेस्ट करोगे कि हाउ सिंपल कंट्रोल्स आर देयर, हाउ सिंपल यूजर इज गाइडेड विद द प्रोसेस, ओके सपोज टुमारो अगर कोई नया सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन आप यूज करते हो, व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग दैट यूजर शुड गाइडेड विद द प्रोसेस, राइट, दैट इज कॉल्ड व्हाट, यूजेबिलिटी. तो मेक अ नोट, व्हाट इज द डिफरेंस इन यूजेबिलिटी, व्हाट इज द डिफरेंस इन यूआई और इवन फंक्शनल टेस्टिंग. तो वाई यूजेबिलिटी कॉल्ड इट एज क्वालिटी एट्रीब्यूट, बिकॉज यहाँ पे हम चेक करेंगे कि एप्लीकेशन इज अ यूजर फ्रेंडली और नॉट. Even usability testing done to ensure that whatever graphical user interface it is well designed and it is easy to use, like links button are easily clickable. Are you getting my point? तो हम ये भी टेस्ट करेंगे कि all the graphical user interface it is properly working and it is easily working. So all the links button should be clickable, text boxes must be editable, right? Again in usability testing, tester tests the control flow of the system, okay, which is convenient for the end user or not. Means application का जो flow होगा, right, it should be easy for that any end user. See, every time end user will not be a technical person, तो इसीलिए आपको जो भी टेस्ट करना है एज पर द एंड यूजर पर्सपेक्टिव टेस्ट करना है. कि सोचो कल अगर कोई एप्लीकेशन आप ओपन करते हो एंड इफ देर इज अ यूआई इज कंप्लीटली स्कैटर्ड, यूजर को समझ में नहीं आ रहा है कि पहले रजिस्ट्रेशन कहाँ पे करना है, लॉगिन प्रोसेस कहाँ पे करना है, कुछ अगर प्रॉपर नहीं है, तो दैट एप्लीकेशन वी कांट से यूजर फ्रेंडली. बट अगर एप्लीकेशन में इजी है, सारे प्रोसेस सब कुछ अगर प्रॉपर गाइडेड है, मेंशन है, then we can say yes, that application is a user friend. So in usability testing, some common scenario that we have to focus, like whether check that whether user is guided within application. If you perform any incorrect step, are you able to notice any proper error message? Okay, adequate help you are getting from the application. That is also important for testing. तो जब कोई प्रॉपर मैसेजेस आते हैं तो मैसेज को भी प्रॉपरली टेस्ट करना आपका रोल होगा. अगेन वी हैव टू चेक दैट मैसेज शुड नॉट बी कॉम्प्लेक्स, इट शुड बी इजी टू अंडरस्टैंड, राइट. Again, do new user understand application usage quickly? That is again comes under usability. Even is quick access provided for the frequent use feature? Just example, simple example. Whenever user complete login functionality after login, okay, after login, every page of that application there should be logout. See what is the concept? Here in the same example, I would like to explain UI and usability both. ठीक है, अब देखो, on every page I'm expecting that after login, logout feature, okay, logout button should be available. If I'm expecting this part, what is this? This is called usability, because I need that button to be available on every page. So this is what usability, right? तो जनरली अगर आप एक्सेसिबल करते हो कि चलो फाइन, द कॉमन फ्रीक्वेंट फीचर लाइक अ लॉग आउट इट शुड बी अवेलेबल ऑन एवरी पेज. बट अगर आपने ये टेस्ट किया, that logout feature should be available or that button or that link should be available on every page at the same position, let's say at the right hand side corner, this is called UI testing. Please try to understand the difference. वो ऑप्शन हर पेज पे अवेलेबल होना चाहिए तो वो यूजेबिलिटी हुआ, करेक्ट. बट ऑप्शन हर पेज पे एक ही पोजीशन पे, एक ही साइज से, एक ही फॉन्ट से होना चाहिए, दैट इज व्हाट यूआई टेस्टिंग. तो दोनों में थिन लेयर डिफरेंस है, बट बोथ इज इंपॉर्टेंट एज पर द यूजर पर्सपेक्टिव. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो दिस इज हाउ usability plays a very important role, where you will understand whether application is user friendly or not,
and whether user is able to easily access that features. Okay, whatever features are available in that application. So is this point clear? What is UI testing? What is usability testing? And how come it is differ from functional testing part? Correct? Okay, reply please. Is this point clear? Yes, ma'am. Yes. Okay. मैम एक बार दोबारा बताओ ना पॉइंट. Okay, so like डिफरेंस आई हैव जस्ट डिस्कस. यूआई में आपका इतना ही काम है कि आपको टेस्ट करना है कंट्रोल्स. ठीक है, कोई फॉर्म है वहां पे कोई कंट्रोल्स है तो कंट्रोल्स के फीचर्स को टेस्ट करो. मतलब वेदर दैट बटन इज क्लिकेबल, ओके, टेक्स्ट बॉक्स एडिटेबल, तो दैट इज व्हाट यू आर टेस्टिंग यूआई. बट अगर वही यूआई आप इजीली एक्सेसिबल कर सकते हो, ओके, दैट यू आर टेस्टिंग, देन इट कम्स अंडर यूजेबिलिटी. तो आप कॉमन एग्जांपल्स को अंडरस्टैंड करो. जैसे मैंने अभी बताया कि अगर आप आफ्टर लॉगिन, what we are expecting after login into application, whatever pages will be there, I'm expecting logout link should be there on every page. तो मतलब हम यूजेबिलिटी चेक कर रहे हैं, राइट, कि यूजर के लिए कितने इजीली वो फीचर अवेलेबल है, दैट इज कॉल्ड यूजेबिलिटी. बट वो लॉगआउट का लिंक एवरी पेज पे सेम लोकेशन पे अवेलेबल होना चाहिए, सेम साइज से अवेलेबल होना चाहिए, उसका फॉन्ट, उसका टेक्स्ट, कलर, एवरीथिंग शुड बी सेम. Whenever you are testing this is called UI test. Are you getting my point? मैंने मतलब दूसरा एग्जांपल दिया. बोलो. मतलब जो विजिबल है वो यूजेबिलिटी है, राइट? नो, फिर विजिबिलिटी इट्स ऑल अबाउट अ ग्राफिकल यूजर कंट्रोल. अगर विजिबल है तो वो आपका यूजेबिलिटी नहीं है. दैट इज व्हाट यूआई ओनली. सी व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग, फॉर्म है, फॉर्म के ऊपर कोई ऑप्शन होना चाहिए. सपोज दिस इज व्हाट माय एक्सपेक्टेशन, राइट. एग्जांपल, आई एम एक्सपेक्टिंग देयर शुड बी जीमेल लिंक अवेलेबल इन माय एप्लीकेशन. ठीक है, ये लिंक है. तो लिंक अवेलेबल है ये चेक करना मतलब यूआई चेक करना. ठीक है, बट मैंने लिंक पे क्लिक किया, लिंक इज वर्किंग, इट इज क्लिकेबल, and even after click I'm able to easily switch to the next page or maybe that Gmail application. What is this? We are checking functionality also, but how easily user is able to click, that is called usability. Are you getting my point? तो इसलिए मैंने सेकंड एग्जांपल दिया है कि अगर आप इंस्टॉलेशन हो रहा है नहीं हो रहा है ये चेक करोगे तो इट कम्स अंडर फंक्शनल, इट कम्स अंडर स्मोक. बट हाउ इजीली यूजर इज एबल टू इंस्टॉल द सॉफ्टवेयर, प्रॉपर गाइडेंस वहां पे अवेलेबल है, दैट इज कॉल्ड यूजेबिलिटी. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो यूआई यूजेबिलिटी वो दोनों में एक थिन लेयर डिफरेंस है. दोनों का मीनिंग सेम है, बट सेम इन द सेंस व्हाट, द फीचर, दैट फंक्शनैलिटी और मे बी दैट यूआई शुड बी अवेलेबल, वो यूआई के पार्ट में आएगा. बट हाउ इजीली यू कैन एक्सेस दैट यूआई, इट कम्स अंडर यूजेबिलिटी. गॉट इट? यहाँ पे मल्टीपल टेस्टिंग टाइप्स है, राइट. हर एक टेस्टिंग टाइप में क्या कॉमन पॉइंट है वो आपको याद रखना है. तो पीपल विल आस्क यू इन द इंटरव्यू व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यूआई एंड यूजेबिलिटी. तो आपको ये अंडरस्टैंड करना है कि डिफरेंस क्या है. UI talks about more and more about graphical user interface, but same graphical user interface, how easily you are able to access, that is called usability. Govind, clear in a simple word? यस मैम. तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि कोई एप्लीकेशन है वहां पे सारे फील्ड्स अवेलेबल होने चाहिए, तो दैट इज यूआई. बट फील्ड शुड बी इजीली एक्सेसिबल, देन इट इज कॉल्ड यूजेबिलिटी. अब इसमें आप मल्टीपल एग्जांपल्स को प्रिपेयर कर सकते हो. So here I have covered 2-3 examples like how we can test the usability, and again it is a quality attribute. तो सोचो अगर कोई एप्लीकेशन है बट आप उसके फीचर को इजीली एक्सेस ही नहीं कर सकते. लेट्स से यू आर कंप्लीटली न्यू फॉर दैट एप्लीकेशन एंड देयर इज नो पॉपअप मैसेज कमिंग, नो गाइडेंस इज कमिंग फ्रॉम द एप्लीकेशन साइड. तो आपको ये प्रोसेस फॉलो करना या एप्लीकेशन में कोई नया अकाउंट क्रिएट करना या जो भी प्रोसेस होगा, वी शुड हैव अ प्रॉपर गाइडेंस, राइट. अगर कोई आपने गलत डेटा एंटर किया तो इमीडिएटली एरर पॉपअप और पॉपअप मैसेज शुड बी डिस्प्ले, ओके, विद अ प्रॉपर एरर मैसेज. क्यों? सो दैट यूजर विल अंडरस्टैंड व्हाट द यूजर डिड रॉन्ग and how the user can overcome that particular feature. Are you getting my point? So this is what usability. So UI usability is related to graphical user interface. Graphical user interface को test करना मतलब UI, but how easily we can access that user interface, that is called usability. Now the main topic, what is performance testing? In non-functional testing type, okay, there are major areas that we need to focus.
जनरली परफॉर्मेंस टेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज वी हैव अ सेपरेट tools available in the market to conduct performance testing, to conduct security testing. So performance, it doesn't mean exactly like only speed, right? There are many factors to be focused. Application का speed test करना, that is not performance, guys. Okay, that is not only the performance. There are other factors also we need to validate. तो इन जनरल सबसे पहले कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करो कि परफॉर्मेंस टेस्टिंग होता क्या है, कब करेंगे, क्यों करेंगे. सो द पॉइंट इज, लेट्स से योर एप्लीकेशन फंक्शनैलिटी वाइज वर्किंग फाइन, बट अगर वो एप्लीकेशन का रिस्पॉन्स इट इज वेरी स्लो, then nobody is going to use that application. Whenever performance testing comes into the picture, तो परफॉर्मेंस टेस्टिंग आप लोग फंक्शनल के पहले परफॉर्म नहीं करते. सबसे पहले फंक्शनल टेस्टिंग होगा, आफ्टर दैट वी कैन गो फॉर परफॉर्मेंस टेस्टिंग. तो परफॉर्मेंस मतलब एग्जैक्टली क्या टेस्ट करोगे, तो वी हैव सर्टेन फैक्टर्स टू बी अंडरस्टैंड. You know what is happening in real time, you will get a separate plan, performance testing plan. Even you will get a special performance requirement. So requirement also you will be getting separate. By following the same performance testing plan and performance requirements only, we do performance testing. But what is the role of tester here? Our main role is what? Now consider this is our software application where the functionality is perfect. Okay, functionality we have completed and functionality is working fine. But now it is important to validate that whether application performance is also, valid or as per the expectation of the customer. So what does performance means? Somewhere speed is the first factor. जहां पे आप टेस्ट करोगे रिस्पॉन्स टाइम, टेक्निकल वर्ड में आप इसको बोल सकते हो रिस्पॉन्स टाइम ऑफ द सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन. सेकेंड पॉइंट आता है थ्रूपुट. थ्रूपुट, व्हाट इज थ्रूपुट मींस? थ्रूपुट का मतलब होता है एट ए टाइम अगर मल्टीपल यूजर एप्लीकेशन को यूज करेंगे तो हाउ द एप्लीकेशन बिहेव, राइट? सो इट इज विद अ मल्टीपल रिक्वेस्ट, लेट्स से समवेयर मल्टीपल रिक्वेस्ट और टेस्टिंग एप्लीकेशन विद मल्टीपल यूजर. तो एक सर्टन टाइम पीरियड में मल्टीपल यूजर ने एप्लीकेशन को रिक्वेस्ट पास किया, तो हाउ द एप्लीकेशन रिस्पॉन्ड टू दैट पर्टिकुलर यूजर, इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर टेस्टिंग. तो जब आप टेस्ट करते हो कोई स्पीड को या थ्रूपुट को, जैसे एग्जांपल, सिंपल एग्जांपल, जैसे जूम हम अभी यूज कर रहे हैं, राइट? तो जूम का जो मैंने बेसिक पैकेज यूज किया है उसका एक बेसिक रिक्वायरमेंट है, एट ए टाइम इन दिस वन मीटिंग 100 participants can attend. Okay, 100 participants can attend the meeting. इसका मतलब Zoom एप्लीकेशन का रिक्वायरमेंट क्या है कि एट अ टाइम, ओके, कॉन्करेंटली एट अ टाइम 100 पार्टिसिपेंट दे कैन अटेंड द जूम मीट. तो इसका मतलब मुझे क्या चेक करना होगा? इफ आई एम टेस्टिंग जूम एप्लीकेशन तो मुझे क्या करना है, 100 रिक्वेस्ट को पास करके देखना है. तो आई एम पासिंग टोटल 100 रिक्वेस्ट by different 100 users to the Zoom application, and here I am validating what? Performance of that application. Are you getting my point? तो performance मतलब क्या? देखो, performance testing is completely different than testing. यहाँ पे हम कोई फंक्शनैलिटी पार्ट को वैलिडेट नहीं करते हैं. जनरली परफॉर्मेंस में हम सर्वर के रिस्पॉन्स को टेस्ट करते हैं, रिस्पॉन्स विच यू आर गेटिंग फ्रॉम दी सर्वर. तो सर्वर से क्या रिस्पॉन्स आपको आता है? In generally these points are very much important to learn. So you know what happened here, you need to understand the client and server relation. तो guys, basic architecture हमने learn किए हैं, right? What does client and what does server will do? Client is responsible to pass a request. अगर ये client है तो client का काम क्या है? request को pass करना. Again, in general performance testing हम conduct करते हैं web application के लिए. Even performance for mobile applications also you can validate easily. Okay, desktop का भी कर सकते हैं, but desktop application generally used by only single user. So most common approaches for performance testing, what type of applications we follow? Web and mobile. Okay, I hope it is clear. Because web application at a time multiple user access कर सकते हैं. Similarly, any mobile application is there. At a time also multiple users they are able to access. Like PUBG game, we can take an example, right? So at a time वो game तो multiple people के through accessible था ना? Yes or no? So that is what? How we can validate a performance?
तो you have a client is responsible to pass a request कहाँ पे पास होगा? request will goes to the सर्वर से जो भी रिस्पॉन्स आपको आता है, it is time to focus on that response parameter. Okay, तो what and how response you will get. सर्वर से जो रिस्पॉन्स आपको मिलेगा, somewhere it is in the form of response code, somewhere it is form of response message, somewhere it is in the form of response time. Okay, तो time parameter is important for performance testing. अब यहाँ पे latency time होता है. Okay, how much byte you have sent to the server, how much byte of information you receive from the server. Yes, computer system में जो memory हम calculate करते हैं, it is in the bits and byte. तो 1 byte, it is all about 8 bits memory. Okay, it is all about 8 bit memory. तो फिर कितने बाइट्स का डेटा आपने सर्वर को पास किया है, सर्वर से कितने बाइट्स में डेटा आपको रिसीव हुआ है इन द फॉर्म ऑफ रिस्पॉन्स, दिस इज व्हाट वी कैन वैलिडेट along with the time. Okay, how much time it has actually taken to complete the process, this we can validate during performance testing. तो यहाँ पे सारे पैरामीटर्स है, जो पैरामीटर को लर्न करना इंपॉर्टेंट है, कि जैसे लेटेंसी टाइम, व्हाट डज लेटेंसी टाइम मीन. अब देखो एक सिंपल सा फ्लो, सोचो कि हमने 0 सेकेंड पे ये रिक्वेस्ट को पास किया, रिक्वेस्ट गोज टू द सर्वर, लेट्स से एट 10 सेकेंड. आफ्टर 10 सेकेंड जब भी सर्वर ने फर्स्ट रिस्पॉन्स स्टार्ट किया है, लेट्स से आफ्टर 5 सेकेंड, मींस 15 सेकेंड इस टाइम ड्यूरेशन पे सर्वर ने एक रिस्पॉन्स को स्टार्ट किया, तो द टाइम वेयर द रिस्पॉन्स गॉट स्टार्टेड, दिस इज कॉल्ड लेटेंसी टाइम. तो यहाँ पे मल्टीपल पैरामीटर्स है. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कोड मतलब क्या? दिस इज ऑल अबाउट HTTP कोड. अब HTTP में मल्टीपल कोड स्ट्रक्चर है. जैसे सक्सेस कोड, अगर कोई रिक्वेस्ट आपको जो भी रिस्पॉन्स आ रहा है वो सक्सेसफुल है, तो 200 सीरीज इज फॉर सक्सेस रिस्पॉन्स कोड. ओके, सर्वर साइड से कोई एरर है तो यू विल गेट 500 रिस्पॉन्स कोड फॉर अ सर्वर साइड एरर. क्लाइंट साइड से कोई प्रॉब्लम है तो यू विल गेट 400 रिस्पॉन्स कोड फ्रॉम द क्लाइंट. इंफॉर्मेशनल प्रॉब्लम है तो 100 वाला सीरीज होता है इंफॉर्मेशन इशू के लिए. तो देर आर डिफरेंट सीरीज अवेलेबल. इफ यू आर गेटिंग 200 एज अ रिस्पॉन्स कोड, इसका मतलब एप्लीकेशन का रिस्पॉन्स, और एप्लीकेशन क्या है? इट इज अ सक्सेसफुल रिस्पॉन्स फ्रॉम द एप्लीकेशन. तो परफॉर्मेंस टेस्टिंग में आप यूआई को फोकस नहीं करते. दैट इज व्हाट द पॉइंट आई वांट टू एक्सप्लेन. परफॉर्मेंस टेस्टिंग के टाइम पे हम यूआई को ऑब्जर्व नहीं करते. व्हाट वी आर टेस्टिंग, अगर आपने रिक्वेस्ट को पास किया तो हाउ द सर्वर इज रिस्पॉन्डिंग टू दैट रिक्वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ रिस्पॉन्स, दैट वी वैलिडेट. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अब इसमें भी ये एक रिक्वेस्ट मैंने पास किया है, वी नीड टू चेक दैट परफॉर्मेंस ऑफ अ सर्वर. इफ टुमारो मल्टीपल यूजर आर पासिंग द रिक्वेस्ट, ये यूजर 1 था, इसने रिक्वेस्ट पास किया, सपोज देर इज अ वन मोर क्लाइंट and user 2 is passing the request to the server. At a time, multiple user, they are trying to access some functionality, they are trying to access application from that server. Then guys, whatever request you are passing, still your performance of the server must be stable. यहाँ पे performance degrade नहीं होना चाहिए, मतलब performance low नहीं होना चाहिए. Are you getting my point? तो it should be always a quality one. तो basic expectation क्या है? सोचो कि ये Zoom का सर्वर है. Whenever 100 user at a time they are passing request to the Zoom application performance must be stable. That is what we are expecting, right? कि at a time client का expectation ये है कि at a time अगर 100 user ने at a time Zoom को access भी किया, तो भी Zoom का performance stable होना चाहिए, Zoom का performance scalable होना चाहिए. There might be possible ना, at a time 100 नहीं कर रहे, जैसे हमारे इसमें होता है नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से sometimes what happen, suddenly request goes to high, let's say suddenly 100 participant can join, or suddenly some participant can left the meeting. अब इस केस में क्या होगा? Whatever variations will be there in the request, it should not impact on the software performance. Are you getting my point? तो ये functional testing से completely different है. इसीलिए to learn performance testing, whenever we complete this theoretical part, I will be taking session for JMeter. JMeter, where you will understand what performance testing it is, how we use this tool to conduct performance testing.
बट पहले इसके लिए आपको पहले ये अंडरस्टैंड करना है कि व्हाट परफॉर्मेंस इट इज, डिफरेंट टाइप्स क्या है परफॉर्मेंस टेस्टिंग के, एंड देन आई विल प्रोवाइड यू द ट्रेनिंग फॉर JMeter वेर यू विल लर्न what this tool it is and how you are able to test performance of this software application. यहाँ पे की पॉइंट है, you know, JMeter is not only the tool through which you can do performance testing. JMeter से आप functional testing भी कर सकते हो. Performance is a major area that we can do. Even we can conduct API testing too. So we are not going to learn all these three. I will be covering only performance through the JMeter. Because for functional testing, we have a separate popular tool which are available in the market. That's the Selenium Learning, right? You will be having session for Selenium. API testing, I will be covering through Postman for manual testing, and even I will be covering Rest Assured for automation testing. So anyways, we are spending our time to learn API, to learn functionality, okay, with the help of tool, with the help of software. But majorly, performance testing, we can't do manually, guys. मतलब manually आप लोग test case लिख सकते हो, right? But now tell me कि only test case writing is not enough ना. मैनुअल टेस्टिंग में आगे का प्रोसेस क्या है? टेस्ट केस राइटिंग करो, टेस्ट केस को एग्जीक्यूट भी करो, एंड देन वॉट एवर डिफेक्ट्स यू विल फाइंड आउट, यू विल पास टू द डेवलपर फॉर फिक्सिंग पर्पस. आपको सेम करना है परफॉर्मेंस के टाइम पे भी. पहले सॉफ्टवेयर के परफॉर्मेंस को वैलिडेट करो. इफ यू नोटिस कि नहीं, जूम एप्लीकेशन स्टेबल नहीं है, परफॉर्मेंस इज डिग्रेडिंग, इन दैट केस यू विल आस्क डेवलपर टू फिक्स दिस प्रॉब्लम. जब डेवलपर प्रॉब्लम को फिक्स करेंगे, देन ओनली परफॉर्मेंस ऑफ दैट एप्लीकेशन विल बिकम स्टेबल एंड इट विल इंक्रीज, गाइस. तो क्वालिटी एट्रीब्यूट क्यों इसको बोला जाता है कि अगर सॉफ्टवेयर फंक्शनैलिटी इज परफेक्ट, everybody can log in into Zoom, they can attend the meeting, they are able to listen the voice and audio, video, every facility. But the problem is, suddenly if any user get join the meeting, suddenly if any user disconnect the meeting, suppose Zoom is got stuck somewhere. अगर ऐसा कुछ होता है तो की बात कर रही हूं मैं, राइट? इफ जूम इज गेटिंग स्टक समवेयर, देन देर इज अ प्रॉब्लम. इसीलिए जूम का स्टेबिलिटी होना, जूम स्केलेबल होना, रिस्पॉन्स क्विक होना बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर इसमें से कोई भी एक फीचर आपका फेल होता है तो कोई एप्लीकेशन, इस एप्लीकेशन को यूजर फॉलो नहीं करेगा, राइट? बिकॉज यूजर विल नोटिस दिस काइंड ऑफ इशू कि अरे जूम में इतने सारे इश्यूज है तो क्यों जूम को यूज करेंगे. सिंपल. तो फंक्शनैलिटी वाइज अगर कोई सॉफ्टवेयर ओके है, बट नॉन फंक्शनैलिटी वाइज भी सॉफ्टवेयर शुड बी परफेक्ट. एंड दैट्स द रीजन इनको क्वालिटी एट्रीब्यूट्स को टेस्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है. कि जैसे जूम शुड बी वर्क ऑन एवरी प्लेटफॉर्म. जूम एप्लीकेशन मुझे मैक से भी एक्सेसिबल होना चाहिए, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम से भी एक्सेस होना चाहिए. आई शुड एबल टू एक्सेस जूम थ्रू लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम ऑल्सो. तो वो पार्ट आता है कंपैटिबिलिटी के अंदर. Today we are learning performance, but try to understand what does performance means. Performance का ये मतलब नहीं है कि आप सॉफ्टवेयर के UI को टेस्ट करोगे. Performance it's all about you are actually validating server response. इसलिए ये स्पेशल है. Why it needs specialized testing, or why the specialized testing team we required to do performance testing? Because इसका प्लान अलग होता है, इसके रिक्वायरमेंट्स अलग होते हैं, इसके टेस्टिंग का प्रोसेस ये भी अलग होता है. We don't focus on the functionality. We focus how quickly we are able to access the feature of that application. Tomorrow, if at a time many users they are trying to access application, how easily that user can access the application. अब सोचो, live cricket है, okay, live match, football match, cricket match, if it is going on, हम लोग क्या करते हैं? And suppose if they are trending, or if they are simply showing you or providing you the match through some application like Hotstar and all, in that case many people go to that application, they log in and they immediately try to check the status कि okay fine अभी का स्कोर क्या है. तो ये होता है ना रियल टाइम में, वी डू दैट. लेट्स से Amazon पे पिक पीरियड है. पिक पीरियड मतलब क्या? जैसे फेस्टिवल का सीजन, दिवाली ऑफर, ओके. In that case many people, there is a possibility they will reach out to the application and they will able to purchase a product. Yes, possible है ना? तो जब ये पीक टाइम रहेगा, जैसे फेस्टिवल टाइम, कुछ ऑफर्स है, जैसे बिग बाजार में हम देखते हैं ना सेल्स होता है, वेनेसडे सेल एंड समथिंग, तो वहां पे बहुत सारे लोग एट ए टाइम वो एप्लीकेशन या प्रोडक्ट जो भी है परचेस करने के लिए जाते हैं, राइट? तो एट दैट टाइम दैट फीचर वॉट एवर दे आर एक्सपेक्टिंग इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस, it should be proper, it should be valid.
तो परफॉर्मेंस टेस्टिंग का ऑब्जेक्टिव भी अलग है एंड ये प्रोसेस भी अलग, एंड सो इट इज कॉल्ड नॉन फंक्शनल। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो पहला ये पिक्चर क्लियर करो कि परफॉर्मेंस मतलब क्या। इट डजंट मीन एनी काइंड ऑफ फंक्शनैलिटी, यूआई, नथिंग। इट इज ऑल अबाउट अ बैकएंड साइड टेस्टिंग, बट बैकएंड साइड में आप लोग ये सारे पॉइंट को टेस्ट कर सकते हैं जस्ट टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस ऑफ द एप्लीकेशन। सिर्फ मेन कंसेप्ट है कि अगर क्वालिटी फेल हो रहा है तो क्वालिटी को इम्प्रूव करो, बट इम्प्रूव करने के लिए यू नीड टू वैलिडेट फर्स्ट वेदर एप्लीकेशन इज अ क्वालिटी और नॉट, एंड दैट्स द रीजन इट इज कॉल्ड नॉन फंक्शनल। तो प्लीज अंडरस्टैंड व्हाट इज परफॉर्मेंस नाउ। So in software performance testing means quality assurance. Yes, it is all about we are testing the quality of that application. It involves testing the software application to ensure that they will perform well under expected workload. Guys, what does workload means? Workload का मतलब होता है whatever expectation, okay, whatever expectation is there from the customer, for that load it should work. तो लोड इस टर्म का मतलब होता है नंबर ऑफ यूजर रिक्वेस्ट, राइट? इफ दे आर एबल टू और इफ दे आर ट्राइंग टू एक्सेस एप्लीकेशन, तो एप्लीकेशन शुड बी एक्सेसिबल, दैट इज कॉल्ड एक्सपेक्टेड वर्कलोड। अगेन, द फोकस ऑफ परफॉर्मेंस टेस्टिंग, it is to checking the software performance, software program for its speed, scalability and the stability. तो स्पीड का मतलब होता है जनरली वी आर एक्सपेक्टिंग दैट कि जब भी आप कोई प्रोसेस को फॉलो करोगे, लेट्स से इफ आई क्लिक ऑन द बटन, basic expectation is what? Within a second it should load or it should navigate to next page. Okay, जैसे कि normally if I enter URL, what I'm expecting, within hardly 3 seconds I should able to land on that home page. This is what performance testing we are doing. Are you getting my point? तो response time जब आप टेस्ट करते हो, that application response should be quick. Within a specific time period you will be able to access the application, then it comes under a speed. सोचो कि आपने कोई बटन पे क्लिक किया, ठीक है? अब देखो ये फॉर्म है एंड देयर इज अ सपोज लिंक अवेलेबल, XYZ लिंक, एंड माय सिंपल एक्सपेक्टेशन इज व्हाट? लेट मी राइट एक्सपेक्टेशन। तो हियर माय एक्सपेक्टेशन इज व्हाट? विदिन 3 सेकेंड it should land, it should navigate to next page. Okay, next page, that is what my expectation. तो मैंने क्लिक किया, ठीक है, I do click, but once I click on this link, now it is actually taking 10 seconds to land on a next page. अब बताओ यहाँ पे आपने क्या टेस्ट किया है? आर यू टेस्टिंग द फंक्शनैलिटी? ओके, लैंडिंग ऑन नेक्स्ट पेज दैट इज अ फंक्शनैलिटी, बट how much time it is taking? So here we have tested what? Response time. What is this? Response time. तो अगर कोई टेस्ट केस आप रिस्पॉन्स टाइम के लिए प्रिपेयर करोगे, इट कम्स अंडर परफॉर्मेंस टेस्टिंग। आर यू गेटिंग माई पॉइंट एवरीबडी? मैंने यहाँ पे क्या टेस्ट किया है? परफॉर्मेंस, हाउ मच टाइम इट इज टेकिंग टू लैंड ऑन अ नेक्स्ट पेज, देन इट कम्स अंडर परफॉर्मेंस। बट ओके फाइन, क्लिक किया, क्या नेक्स्ट पेज ओपन हो रहा है, ये टेस्ट करोगे तो वो आता है फंक्शनल के अंडर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो वाई वी हैव अ डिफरेंट टाइप्स? बिकॉज एवरी टाइप हैव अ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव गाइस। आपको टेस्ट करना है कि व्हेन यू क्लिक ऑन द लिंक इट इज लैंडिंग ऑन अ नेक्स्ट पेज, देन इट कम्स अंडर फंक्शनल टेस्टिंग। ओके, बट अगर आपने टेस्ट किया कि ओके फाइन, व्हेनेवर यूजर क्लिक ऑन द लिंक it is landing on a next page within a 10 second or within a 3 second, then it comes under performance test. तो ये जो रिक्वायरमेंट होते हैं ना, कितने टाइम में आपका नेक्स्ट पेज ओपन होना चाहिए, कितने टाइम में यूआरएल शुड नेविगेट टू होम पेज, वॉट एवर इट इज, दीज आर गिवन इन स्पेशल रिक्वायरमेंट। मतलब परफॉर्मेंस टेस्टिंग का सेपरेट रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट होता है, SRS डॉक्यूमेंट होता है, प्लान होता है, बेस्ड ऑन दैट वी डू परफॉर्मेंस टेस्टिंग। तो सिंपल रिक्वायरमेंट लाइक दिस रिस्पॉन्स टाइम, you will get some requirement for response time validation, you will get some response time, or you will get some requirement related to load, that at a time, okay, at a time application should be accessed by 100 user, at a time application should be accessed by 10,000 user, but how it is possible? Okay, some limit you will be getting in your requirement, but अब सोचो कि इसके लिए टेस्ट केस राइटिंग तो इजी है, बिकॉज वी आर जस्ट राइटिंग नॉर्मल इंग्लिश स्टेटमेंट, बट जब एग्जीक्यूशन का टाइम आएगा तो कैसे करोगे?
Like this part we can execute easily, we just need to perform click action. बट अगर मैंने आपको पूछा कि नहीं ये क्लिक आपको ट्राई करना है 100 यूजर के साथ, इज इट पॉसिबल कि 100 यूजर को फिजिकली बुला के आप करोगे ये परफॉर्मेंस टेस्टिंग? नो, इट्स नॉट पॉसिबल गाइस. तो यूजर इज नथिंग बट, क्रिएशन ऑफ यूजर इज नथिंग बट, फिजिकली इतने सारे रिसोर्सेस को रेडी करना इट इज क्वाइट डिफिकल्ट, बिकॉज वी डोंट नीड ओनली यूजर. हमें यूजर रिक्वायर्ड होंगे, उतने सारे मशीन्स रिक्वायर्ड होंगे जहां से हम रिक्वेस्ट को पास करेंगे हमारे सर्वर के पास. एंड दैट इज द रीजन, you know, performance testing it is possible with the help of automation tool. तो क्यों ऐसा? बिकॉज ऑटोमेशन में से क्या करेंगे वो लोग, कैसे यूजर के रिक्वेस्ट को पास करेंगे? तो गाइज देयर दे सिंपल फॉलो वर्चुअलाइजेशन. मीन्स they will create a virtual user which will act like a physical user only. Okay, तो वर्चुअल यूजर के रिक्वेस्ट को जनरेट करके दे विल पास टू द सर्वर. एंड यू नो इसी वर्चुअलाइजेशन कॉन्सेप्ट को बोला जाता है लोड, or simple we can call it as thread. Thread, it is what? One kind of process, one request or one user. Are you getting my point? तो ये जो load वाला concept है, load it is nothing but a user request. तो generally हमें test करना है कि whether application responds quickly, what is scalability, determine maximum user load the software application can handle. मतलब Zoom का अगर limit है 100 user at a time they can attend the meeting, तो मैक्सिमम लिमिट आप लोग टेस्ट करोगे, मतलब क्या करोगे? सबसे पहले तो चेक करो कि क्या 100 यूजर एट ए टाइम टेस्ट कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं. एंड समवेयर इफ एनी यूजर बियॉन्ड द लिमिट इफ ही ट्राई टू एक्सेस जूम, तो क्या होना चाहिए? तो अगर एग्जांपल 101 यूजर वी हैव एंड दैट यूजर इज ट्राइंग टू एक्सेस अ जूम, ऑलरेडी 100 पार्टिसिपेंट्स आर देयर इन द जूम मीटिंग, तो इस यूजर को एक्सेस मिलना चाहिए क्या? व्हाट डू यू थिंक? If expectation is at a time only 100 can attend, then whenever 101 limit is beyond, and at that time if user is trying to access the application, this new user should not get access. Even new user generally get a error message. It should, like what we are expecting, कि user को एक message आना चाहिए that meeting is full, try some other time. Are you getting my point? This is what scalability. तो आप लोग maximum concurrent load, maximum load you can try, you can test. Even what is stability? Determine application is stable under varying condition. तो suddenly 100 participant आए हैं मीटिंग में, suddenly 50 participant get left the meeting, again 50 connect the meeting. अगर sudden changes आपके नेटवर्क में होंगे जो कि लाइव सेशंस में या लाइव एनवायरमेंट में होता है, राइट? एग्जांपल लाइव मैच इज गोइंग ऑन, लाइव वेब सीरीज इज गोइंग ऑन. इन दैट केस देयर इज अ पॉसिबिलिटी सडन चेंजेस. तो फिर सडन चेंजेस पे भी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन मस्ट बी स्टेबल. एंड यू नो दिस इज व्हाट वी आर डूइंग परफॉर्मेंस टेस्टिंग. तो ये बहुत स्पेशल है एंड बहुत इंटरेस्टिंग भी है. सो मेनली व्हाट वी फोकस, रिस्पॉन्स टाइम एंड द थ्रूपुट. रिस्पॉन्स टाइम का मतलब होता है हाउ फास्ट रिक्वेस्ट इज प्रोसेस एंड सर्व बाय द सर्वर. थ्रूपुट का मतलब होता है नंबर ऑफ ट्रांजेक्शंस, नंबर ऑफ इनपुट्स, नंबर ऑफ रिक्वेस्ट प्रोसेस बाय दैट एप्लीकेशन पर यूनिट ऑफ टाइम. मतलब स्पेसिफिक टाइम पीरियड में कितने रिक्वेस्ट आपका सर्वर हैंडल कर रहा है, दैट वी कैन टेस्ट. एंड दैट्स द रीजन मैन्युअली इट इज समहाउ डिफिकल्ट टास्क टू वैलिडेट. तो वी हैव अ डिफरेंट टूल्स अवेलेबल इन द मार्केट. कई टूल्स इसमें ओपन सोर्स है, कई टूल लाइसेंस है, बट विल बी कवरिंग JMeter टूल विच इज अ फ्री टूल, ओपन सोर्स टूल. तो वी कैन एक्सेस JMeter, we can perform performance testing through the JMeter. But before starting the session with JMeter and how exactly practically we do the same, what we need to understand, different types. कितने types है performance testing के? So there are 5 types available. You need to understand what is the load, what is the stress, what is endurance, volume, and the spike testing. So guys, in a simple word, load testing का meaning होता है test the application performance with respect to client expected load. That is called load testing. मतलब let me take a same example. Zoom का expectation है at a time 100 participant can attend the meeting. तो अगर मैंने Zoom को 100 limit के साथ टेस्ट किया, this is called load testing. What I'm doing, I'm just putting the same concurrent expected load.
तो अप्लाई एक्सपेक्टेड लोड ऑन टू द सॉफ्टवेयर एंड टेस्ट द परफॉर्मेंस. दिस इज कॉल्ड लोड टेस्टिंग. अब स्ट्रेस का मतलब क्या है? स्ट्रेस देना मतलब if limit is 100, then we have to try to extend the limit and we have to check that how the software is responding to that exceed limit. मतलब Zoom application can handle 100 requests at a time, but हम लोग क्या करेंगे? We are going to provide 100 too, but 100 के बाद we will try to provide a beyond limit some request. मतलब 100 के बाद 101, 102, somewhere you need to increase the load onto that software. So that means you are putting some stress. Simple. जैसे अगर मैंने बोला कि चलो हम लोग आज का सेशन कवर अप करेंगे 8 आवर्स के लिए, दैट विल बी स्ट्रेस फॉर यू, राइट? लोड क्या है कि चलो फाइन 1.5 आवर का सेशन होगा, तो फाइन एक्सपेक्टेड टाइम पीरियड में मैम शुड कंप्लीट द टॉपिक, और वॉट एवर टॉपिक इट इज वी शुड अंडरस्टैंड इट. दैट इज वॉट यूर लोड टेस्टिंग. बट स्ट्रेस क्या होगा? अगर मैंने बियॉन्ड द लिमिट ट्राई किया, दैट विल बी डेफिनेटली स्ट्रेस. बट उस स्ट्रेस का इम्पैक्ट क्या हो सकता है पता है? जनरली वाई देन पीपल विल डू स्ट्रेस टेस्टिंग? गाइस देखो, आपको आइडेंटिफाई करना है परफॉर्मेंस रिलेटेड इश्यूज. जब आपको मिलेंगे तब जाके आप उसका परफॉर्मेंस इंप्रूव कर सकते हो. तो स्ट्रेस टेस्टिंग यूजुअली कंडक्ट टू आइडेंटिफाई मैक्स लोड दैट सिस्टम कैन हैंडल. अगर सिस्टम इज डिजाइन फॉर 100 यूजर, बट सपोज स्टिल द सिस्टम कैन एक्सेस मैक्स लोड लेट्स से 150, इसका मतलब ये ब्रेकिंग पॉइंट आप आइडेंटिफाई कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ स्ट्रेस टेस्टिंग. तो स्ट्रेस टेस्टिंग इज जनरली इट्स काइंड ऑफ निगेटिव टेस्टिंग, बिकॉज जहां पे आप बियॉन्ड द लिमिट लोड को इंक्रीज करोगे एंड यू आर गोइंग टू टेस्ट द परफॉर्मेंस ऑफ द सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, देन इट इज कॉल्ड स्ट्रेस टेस्टिंग. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो लोड एंड स्ट्रेस में क्या डिफरेंस है? फॉर एक्सपेक्टेड वर्कलोड इफ यू आर टेस्टिंग एप्लीकेशन, तो वो होता है लोड, मतलब सेम लिमिट पे टेस्ट करो. 100 बोला है ना कस्टमर ने, तो 100 यूजर के साथ ही एप्लीकेशन यूजफुल होना चाहिए. दैट इज कॉल्ड लोड. But somewhere we are passing beyond the limit, and then we need to check that software response. So usually what we are expecting in the positive way, if any user try to access the application beyond the limit, application should provide appropriate message to that user that meeting is full, try it some other time. But somewhere it is also we can make sure that how much load my system can access, my system can sustain. So max load you can identify, max limit also you can identify by conducting stress testing. Okay, what is endurance? Endurance को एक और नाम है soak. Soak testing. What does soak testing means? अब सोचो, in endurance testing और in soak testing we are applying same expected limit. मतलब यहाँ पे हम कुछ beyond नहीं करते, but concept is different. Apply 100 user load, okay, apply same expected only, matlab 100 user load onto the Zoom application, but I am applying for continuous time period. Means same application load हम कैसे access apply करेंगे? Suppose 100 user they are accessing the application for continuously 2 hours, let's say continuously for 4 hours, now they are increasing the limit 8 hours. तो continuously you need to apply the load and you need to check performance degradation. Are you getting my point? हो सकता है ना, आप सोचो एक सिंपल जनरल एग्जांपल. अगर आपने फुल डे, ओके, फुल डे अपने कंप्यूटर मशीन को, लैपटॉप को ऑन रखा है, okay, suppose your battery everything is connected, in that case somewhere you will feel that your machine is little bit heated, right? होता है ना, मोबाइल फोन के टाइम पे भी होता है. अगर कंटिन्यूसली आपका 1 आवर के लिए कॉल चल रहा है, तो मे बी देर इज अ पॉसिबिलिटी समवेयर वी कैन फील दैट मोबाइल इज हीटेड, राइट? तो ये क्यों होता है? बिकॉज कंटिन्यूसली वी आर अप्लाइंग द लोड ऑन दैट मशीन, ऑन दैट डिवाइस. तो ये भी टेस्ट करना इंपॉर्टेंट है ना, कि अगर कोई बैंकिंग एप्लीकेशन है, रिक्वायरमेंट होता है कि चलो 24/7 आवर्स वी आर इन द सर्विस, तो 24/7 आवर्स में अगर किसी यूजर ने कंटिन्यूअसली पूरे दिन के लिए एप्लीकेशन को ओपन रखा है, तो स्टिल द एप्लीकेशन इज वर्किंग, स्टिल द यूजर इज हैविंग द सेम परफॉर्मेंस, यूजर इज गेटिंग द सेम परफॉर्मेंस फ्रॉम द सॉफ्टवेयर. ये टेस्ट करना इंपॉर्टेंट है. एंड यू नो इसी को बोलते हैं इंड्योरेंस टेस्टिंग. मतलब in terms of technical word, apply expected workload onto the software but for continuous time period, and then we can test the performance. Are you getting my point?
then it is called endurance testing. Everybody, 3 types I have discussed so far. Please tell me, load testing is clear, stress testing is clear, and endurance testing, it is clear. Once again, endurance testing. देखो इंड्योरेंस का मतलब होता है कि सेम एक्सपेक्टेड लोड जितना भी है उसी लोड को आप लोग कंटिन्यूअस टाइम पीरियड के लिए अप्लाई करोगे। मतलब सोचो कि चलो कंटिन्यूअस मतलब अगर जूम का ऐसा कोई रिक्वायरमेंट है क्योंकि इन अ डे लेट्स से जूम एप्लीकेशन और फॉर अ वन मीटिंग देयर इज अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड दे हैव डिफाइंड कि चलो आप 8 आवर्स का मीटिंग ले सकते हो। ठीक है, 8 आवर्स का मीटिंग, एक सेशन का मीटिंग आप ले सकते हो विद द सेम 100 यूजर। तो ये बेसिक एक्सपेक्टेशन है। तो हमारा काम क्या होगा कि चलो कंटिन्यूअसली 8 आवर्स हम देंगे, बट 8 आवर्स का ये जो मीटिंग होगा वो कंटिन्यूअस होगा इवन बियॉन्ड दिस। सपोज सिस्टम इज डिजाइन फॉर 8 आवर्स, बट आई एम ट्राइंग फॉर 10 आवर्स नाउ। आई एम ट्राइंग फॉर व्हाट, कंटिन्यूअस टाइम पीरियड फॉर 20 आवर्स, फॉर 24 आवर्स। then how much your application is responding or how it is responding to that user, ये चेक करना इंपॉर्टेंट है। तो अगर कोई सॉफ्टवेयर का डिजाइन है कि वो सॉफ्टवेयर काम करेगा कंटिन्यूअसली 8 आवर्स के लिए, पर फिर हम क्या करेंगे, कंटिन्यूअस टाइम पीरियड अप्लाई करेंगे। वी आर यूजिंग सेम लोड बट फॉर कंटिन्यूअस टाइम पीरियड वी आर बियॉन्डिंग द लिमिट। बट यहाँ पे टाइम के अकॉर्डिंग लिमिट आप बियॉन्ड करोगे, नॉट इन द फॉर्म ऑफ यूजर। यूजर लोड सेम रहेगा, एक्सपेक्टेड ओनली 100। बट इफ दैट सेम लोड यू आर अप्लाइंग फॉर अ कंटिन्यूअस टाइम पीरियड थ्रू आउट अ डे सपोज, and then we are checking performance, then it comes under endurance testing. Got it? जैसे मैंने एक और एग्जांपल दिया था कि कोई साइट को आप थ्रू आउट अ डे यूज कर रहे हो, फेसबुक, लिंक्डइन, यू आर यूजिंग थ्रू आउट अ डे, कंटिन्यूअसली आपका साइट ऑन ही है। उस केस में समटाइम्स देयर इज अ प्रॉब्लम विद द परफॉर्मेंस, तो वी हैव टू टेस्ट दैट कि अगर कोई एप्लीकेशन डिजाइन है फॉर स्पेसिफिक टाइम पीरियड दैट वी कैन एक्सेस इट कंटिन्यूअसली। जैसे सोचो ना कि अगर ओटीपी आता है, राइट, हमें मोबाइल पे ओटीपी आता है, उसका स्पेसिफिक टाइम होता है, विद इन 20 सेकेंड सपोज इट इज वैलिड। आफ्टर 20 सेकेंड क्या होगा, ऑटोमेटिकली इट विल आस्क यू टू सेंड रीसेंड द रिक्वेस्ट। तो व्हाई दिस इज सो, बिकॉज दे आर अवेयर, राइट, कि बेसिक टाइम पीरियड एक डिजाइन है एप्लीकेशन के रिक्वायरमेंट के लिए, फीचर के लिए, विद इन दैट डेफिनेटली एप्लीकेशन शुड वर्क। बट समवेयर वी हैव टू चेक फॉर द परफॉर्मेंस कि अगर हमने उसी फीचर को कंटिन्यूअसली अप्लाई किया और कंटिन्यूअसली यूज किया विद द सेम लोड, हाउ द एप्लीकेशन परफॉर्मेंस इट विल बी, एंड देन इट इज कॉल्ड इंड्योरेंस टेस्टिंग। गॉट इट? तो इसलिए मैंने मशीन का एग्जांपल दिया, मोबाइल का एग्जांपल दिया कि अगर आपने कंटिन्यूअस उसको चार्जिंग पे लगाया है, राइट, तो समवेयर वी फील दैट कि एप्लीकेशन का रिसोर्स इंपैक्ट हो रहा है बिकॉज इट इज गेटिंग हीटेड। तो ये क्यों होता है, बिकॉज वी आर यूजिंग कंटिन्यूअसली। तो सेम चीज आप यहाँ पे करोगे इन टर्म्स ऑफ सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट। तो लोड टेस्टिंग का मतलब होता है अप्लाई एक्सपेक्टेड वर्कलोड ऑन टू द सॉफ्टवेयर एंड चेक द परफॉर्मेंस। स्ट्रेस का मतलब होता है बियॉन्ड द लिमिट अप्लाई द लोड, मतलब 100 अगर लिमिट है तो ट्राई करो बियॉन्ड द लिमिट 101, 102 एंड सो ऑन, एंड चेक द स्ट्रेस, you know how the application performance it is, that is called stress testing. Same expected workload if you apply for a continuous time period and we are checking the performance, then it is called endurance testing. Okay, 3 टाइप क्लियर है? हेलो मैम। बोलो। मैम लोड में भी हम एक्सपेक्टेड लोड दे के टेस्ट करेंगे एंड Right. सोक में भी एक्सपेक्टेड लोड दे के टेस्ट करेंगे, राइट, बट कंटिन्यूअसली टेस्ट। एग्जैक्टली, दैट्स अ डिफरेंस। कि यहाँ पे क्या होगा कि लिमिट के लिए अगर आप टेस्ट करते हो ना, क्योंकि फाइन इट इज गिवन कि जूम एप्लीकेशन शुड बी एक्सेसिबल एट अ टाइम बाय 100 पार्टिसिपेंट, तो यू आर डूइंग लोड टेस्ट। बट एट अ टाइम वो पार्टिसिपेंट कितने टाइम के लिए एक्सेस कर सकते हैं जब आप ये टेस्ट करते हो, दैट इज कॉल्ड इंड्योरेंस। गॉट इज? यस। ओके, मैम नाउ मतलब गाइस, टेल मी। लोड में जैसे कि अभी आपने ये एंड्योरेंस में बताया था कि 2 आवर्स, 4 आवर्स, 6 आवर, तो ये लोड में क्राइटेरिया नहीं आता है क्या, 2 आवर, फोर नहीं, आवर्स 6 आवर्स का? नहीं, नहीं, इसीलिए तो डिफरेंट टाइप है ना गोविंद। वी हैव, व्हाई वी हैव अ डिफरेंट टाइप, बिकॉज एवरी टाइप हैविंग अ डिफरेंट ऑब्जेक्टिव। पहले लोड टेस्टिंग, इट्स अ वेरी कॉमन। लोड टेस्टिंग का मतलब होता है यूजर का जो एक्सपेक्टेशन है आप उसी एक्सपेक्टेशन के लिए टेस्ट करोगे एप्लीकेशन के परफॉर्मेंस को, सो इट कम्स अंडर लोड। तो लोड का मतलब होता है वॉट एवर गिवन रिक्वायरमेंट इट इज, गिवन लिमिट इट इज,
उसी लिमिट के लिए टेस्ट करो। जैसे होता है ना कि मेरे पास एक ड्राइव स्पेस है, इसका लिमिट है 2 GB डेटा आई कैन स्टोर। तो मुझे क्या टेस्ट करना है? व्हाट इज लोड टेस्टिंग हियर? आई कैन स्टोर 2 GB डेटा ओनली, दैट इज अ लोड टेस्ट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो उतना ही डेटा जब आप लिमिट के लिए टेस्ट करते हो वो होता है लोड टेस्टिंग। बट हाँ, कितने टाइम के लिए आप उसको होल्ड कर रहे हो, राइट? स्टिल द परफॉर्मेंस इज वैलिड। ओके, दैट इज व्हाट वी कैन से इंड्योरेंस टेस्टिंग। तो सेम लिमिट, हम यहाँ पे लिमिट को चेंज नहीं करेंगे। लिमिट इज 2 GB, तो 2 GB को ही टेस्ट करोगे, बट फॉर कंटिन्यूअस टाइम पीरियड, एंड देन इट कम्स अंडर इंड्योरेंस टेस्ट। गॉट इट? ओके, हाँ 2 GB का स्पेस है एंड आई एम ट्राइंग फॉर होल्डिंग 3 GB डेटा। इज इट पॉसिबल? पॉसिबल नहीं है ना, तो ड्राइव भी आपको नहीं, मैसेज देगा क्योंकि ड्राइव इज फुल। तो इन दैट केस, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेस। आई एम डूइंग स्ट्रेस टेस्ट। ठीक है, अब आते हैं मेन पॉइंट पे। व्हाट इज वॉल्यूम? यू नो वॉल्यूम, इट्स वेरी स्पेशल। तो व्हाट डज वॉल्यूम मीन्स? पहला ये पॉइंट समझो कि वॉल्यूम का मतलब क्या है। यू नो वॉल्यूम, हियर इट इज ऑल अबाउट द डेटा वॉल्यूम। जैसे सोचो कि क्लाइंट, देर आर मेनी क्लाइंट सपोज, एंड वी आर पासिंग रिक्वेस्ट टू दी सर्वर। जब आप सर्वर को रिक्वेस्ट पास करते हो मतलब आप क्या करते हो? पहला पॉइंट, see we are passing request to the server means suppose I want to open an account. Okay, I want to open some new application is there and I want to open a new account. So definitely these are the three users, everybody wants to open their new account. So user is passing request to the server. Even user is sharing some data to the server. Somewhere I'm sharing my personal details, name, first name, last name, middle name, phone number, email ID. So some kind of data we are sharing to the user. Correct? तो जब मल्टीपल डेटा वी आर पासिंग और मल्टीपल डेटा इज कमिंग फ्रॉम द मल्टीपल यूजर, स्टिल योर सर्वर मस्ट बी स्टेबल। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अब ये एक सिंपल सिनेरियो है। डेटा वॉल्यूम टेस्टिंग का मतलब होता है टेस्ट द सर्वर परफॉर्मेंस, दैट हाउ सर्वर इज कैपेबल टू हैंडल लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा सेट। मतलब सर्वर का कैपेसिटी टू हैंडल लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, दैट इज व्हाट, दैट इज वॉल्यूम टेस्टिंग। अब ये कहाँ पे एप्लीकेबल होगा? बेस्ट एग्जांपल, whenever any result gets out from the university, like maybe I'm taking example for engineering, right? Usually what happened from Pune University, let's say we are getting some date that on this date at 3 p.m. result will be out. Now what everybody try to do? Tell me. So in Maharashtra there are many students. Definitely if everybody's result is simply out at 3 p.m. only, they will reach out to that website. Correct? सबसे पहले आप क्या करोगे? अगर आपको अपना रिजल्ट देखना है तो एब्सोल्युटली वी नीड टू पास सम डेटा, राइट? यूजुअली हम क्या पास करते हैं? हम कॉलेज का आईडी पास करते हैं। ओके, CID आई एम राइटिंग। एंड हम पास करते हैं हमारा एग्जाम सीट नंबर टू check the result. अब सोचो कि at a time 1000 user they are passing the same type of data to the server. So what you are expecting from the server? Server should display the result appropriately. That means server performance should be stable. Yes or no? Tell me. What is this? So here we are not testing limit. What we are testing? We are testing how the server is able to handle large amount of data set. तो इन जनरल हम जब रिक्वेस्ट पास करते हैं वी आर शेयरिंग सम डेटा आल्सो टू अवर सर्वर, एंड इट इज इंपॉर्टेंट टू फोकस ऑन दैट पॉइंट टू, दैट हाउ सर्वर इज हैंडलिंग दैट लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा सेट, एंड इसीलिए इसको बोला जाता है डेटा वॉल्यूम टेस्टिंग। आर यू गेटिंग द एग्जाम्पल? इट्स अ वेरी सिंपल एग्जाम्पल दैट whenever any result get out, we are sharing some detail to the server. And you know most of the time आपने नोटिस किया होगा कि अगर एट अ टाइम बहुत सारे स्टूडेंट उस एप्लीकेशन को ट्राई करेंगे तो समवेयर वी गेट अ मैसेज सर्वर इज डाउन, प्लीज ट्राई सम अदर टाइम। या हैव यू नोटिस समवेयर दिस काइंड ऑफ मैसेजेस? तो व्हाई इट इज सो? बिकॉज देयर माइट बी पॉसिबिलिटी कि बहुत ही ज्यादा यूजर एट अ टाइम उसको यूज कर रहे हैं, एंड दैट्स द रीजन समटाइम्स इट विल टेक सम डिले to show your result, or sometimes you will be directly getting the message that server is down, please try some other time. तो इसका मतलब हम यहाँ पे टेस्ट करेंगे डेटा को भी। तो वाई परफॉर्मेंस टेस्टिंग इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट टाइप, बिकॉज हर टाइप में आप कुछ अलग टेस्टिंग करोगे। लोड टेस्टिंग मतलब फॉर द सेम लिमिट, स्ट्रेस मतलब बियॉन्ड द लिमिट चेक परफॉर्मेंस, इंड्योरेंस मतलब सेम लिमिट फॉर
continuous time period for testing performance. Volume का मतलब होता है we test the server response, okay, to handle large amount of data set. So it is called volume testing. Is this clear? तो वॉल्यूम टेस्टिंग का मतलब होता है डेटा वॉल्यूम टेस्टिंग, चेकिंग द रिस्पॉन्स ऑफ सर्वर विथ रिस्पेक्ट टू लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा सेट. एंड नाउ द मोस्ट इंटरेस्टिंग, स्पाइक. स्पाइक ये यूज होता है रियल टाइम में, जैसे एग्जांपल सडन चेंजेस. ओके, व्हाट स्पाइक मीन? इट इज सडन चेंजेस इन द नेटवर्क. इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर टेस्टिंग गाइस. तो सडन चेंजेस इन नेटवर्क का मतलब क्या है? जैसे एग्जांपल, कोई, मैंने आपको अभी एग्जांपल बताया था कि कोई भी लाइव सीरीज है, लाइव मैच है, तो सडनली पीपल और यूजर लोड गेट इंक्रीज, सडनली यूजर लोड गेट डिक्रीज. तो जो भी वेरिएशन है नेटवर्क में, स्टिल द एप्लीकेशन इट मस्ट बी स्टेबल, एंड देन इट इज कॉल्ड स्पाइक टेस्टिंग. तो स्पाइक टेस्टिंग मीन्स checking the application or performance of the application in the peak period. तो व्हाट इज दैट पीक पीरियड? लाइक Amazon, ओके, जैसे ओला उबर का बुकिंग होता है, अगर आप मॉर्निंग के टाइम पे बुकिंग करते हो 7 to 9, तो दैट्स देयर पीक पीरियड. ये उनका पीक पीरियड है. इस पीरियड में जितना भी उनको लोड रहेगा, राइट, दे नीड टू प्रोवाइड द, अगेन चार्जेस विल बी हाई फॉर दैट लोड, राइट, बट स्टिल पीक पीरियड के टाइम पे एप्लीकेशन को टेस्ट करना, कोई लाइव मैच है, लाइव सीरीज है, उस टाइम पे एप्लीकेशन के परफॉर्मेंस को टेस्ट करना, दैट इज व्हाट, दैट इज कॉल्ड स्पाइक टेस्टिंग. तो स्पाइक का मतलब होता है वेरिएशंस इन द नेटवर्क. वेरिएशंस इन द नेटवर्क मतलब यूजर लोड का वेरिएशन. Suddenly some load got increased, suddenly some load got decreased, and there we need to check the performance of that application. So in somewhere in a peak period, many people they are trying to access the application. So your application must be stable in that peak period. So that's called spike testing. So these are the 5 different types we have under performance testing. Let's see one by one. Okay, then you will understand the point. What is load and some example of load. So load testing, first of all, it is a non-functional. Yes, absolutely, it comes under performance. तो लोड का मतलब होता है द टेस्ट इज कंडक्टेड टू अंडरस्टैंड बिहेवियर ऑफ द एप्लीकेशन अंडर स्पेसिफिक एक्सपेक्टेड लोड. मतलब एक लिमिट के लिए लोड को टेस्ट करना, एप्लीकेशन के परफॉर्मेंस को टेस्ट करना. लोड टेस्टिंग इज परफॉर्म टू डिटरमाइन सिस्टम बिहेवियर अंडर बोथ नॉर्मल एंड इवन एट पीक कंडीशन. द डेफिनेशन गिवन बाय IST Cube is this: the execution of our software build under customer expected configuration, customer expected load to estimate the performance, it is called load testing. In my word, in a simple word, you can explain. Load testing, it is a process of testing the software application by applying same expected workload. That is called load testing. ठीक है? अब इसके examples क्या है? तो guys, somewhere you are downloading series of large file from internet. ओके, सेम जो लोड होगा, मतलब कितना आप डाउनलोड कर सकते हो. जैसे होता है ना, ईमेल में भी हम लोग कुछ तो भी स्पेसिफिक लिमिट तक का ही फाइल आप शेयर कर सकते हो थ्रू द ईमेल, इफ यू आर शेयरिंग एनी फाइल, राइट. जैसे व्हाट्सएप पे भी होता है एक, बट आई एम नॉट रिमेम्बरिंग दैट लिमिट एक्चुअली, बट यस वी हैव दिस काइंड ऑफ रिक्वायरमेंट कि एट ए टाइम आप इतना ही डेटा व्हाट्सएप पे भी शेयर कर सकते हो, स्टेटस पे भी कोई वीडियो को इतने ही लिमिट तक आप शेयर कर सकते हो. तो व्हाट इज दैट? दैट्स अगेन अ लोड टेस्टिंग. मतलब एक स्पेसिफिक लिमिट के लिए एप्लीकेशन के परफॉर्मेंस को टेस्ट करना. तो रनिंग एप्लीकेशन साइमल्टेनियसली ऑन अ कंप्यूटर और सर्वर, वी आर डूइंग लोड टेस्टिंग ओनली. Subjecting server to a large amount of traffic, or writing reading file, okay, writing reading data from the hard disk continuously, again that is example of a load testing. तो ये डिपेंड होगा रिक्वायरमेंट के ऊपर. तो आप सिंपल अंडरस्टैंड करो, वॉट एवर गिवन एक्सपेक्टेशन लोड इट इज, ओके, लिमिट इट इज, अगर आप एप्लीकेशन को उसी लिमिट के सर्कमटेंस पे टेस्ट करोगे, देन इट कम्स अंडर लोड टेस्टिंग. तो अगर आपको पता है तो आप बेस्ट एग्जांपल प्रिपेयर करके दे दो, लाइक जूम एप्लीकेशन आई हैव गिवन. कोई मेमोरी स्टोरेज, आपको पता है इतना ही जीबी उसका एक्सेसिबल एरिया है, तो उतने डेटा, उतने जीबी के डेटा को ही स्टोर करना, मतलब लोड टेस्टिंग. तो लोड इज जनरली फॉर एक्सपेक्टेड वर्कलोड. What is stress? Stress somewhere of absolutely we are beyond the limit, we are trying to access the application, or we are trying to provide some input, or let's say beyond the limit we are asking user to access the application, because it is important to check that कि यूजर का परफॉर्मेंस और सॉफ्टवेयर का परफॉर्मेंस क्या है फॉर दैट नंबर ऑफ रिक्वेस्ट
मैक्सिमम लोड कितना हैंडल कर सकता है आपका सॉफ्टवेयर फॉर दोज नंबर ऑफ रिक्वेस्ट, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर टेस्टिंग। तो अब देखो व्हाट इज स्ट्रेस। पहला तो ये निगेटिव है, बिकॉज लिमिट जितना है उससे बियॉन्ड आप ट्राई करोगे। तो स्ट्रेस टेस्टिंग इट इज यूज टू फाइंड द वेज टू ब्रेक द सिस्टम। सी द पॉइंट, कितने लिमिट कहाँ पे आपका सिस्टम ब्रेक होगा, दैट वी कैन टेस्ट बिकॉज ऑफ स्ट्रेस टेस्टिंग। It also provide the range of maximum load that system can hold. तो one plus point is what? अगर stress testing करोगे तो you will get to know that how much load system is able to actually access, right? अगर 150 यूजर पे ब्रेक हो रहा है, इसका मतलब we can set the limit that 149 user they can able to access the Zoom application. This is how we can test the stress testing. Stress testing, it is a performance testing type. Check the stability of the application whenever any resource related issues will be there, like hardware resources are not sufficient, like CPU, memory, disk space is not available, and still we are trying to hold that data. Then it comes under stress testing. So during this test, functionality of the application is tested under heavy load. See the point. जो लिमिट है उससे बियॉन्ड आप स्ट्रेस को अप्लाई करोगे, रिक्वेस्ट को पास करोगे सर्वर के पास, एंड देन वी टेस्ट दैट एप्लीकेशन परफॉर्मेंस फॉर दैट नंबर ऑफ रिक्वेस्ट और हेवी लोड। तो यहाँ पे एग्जांपल दिया है ऑन द बैक एंड, फंक्शनैलिटी माइट बी रनिंग कॉम्प्लेक्स क्वेरी एंड हैंडलिंग डेटा, राइट? तो दिस इज व्हाट इट माइट बी, रनिंग कॉम्प्लेक्स क्वेरी एंड रनिंग एंड हैंडलिंग द डेटा। बट अगर ये लिमिट के एक्सीड आप करोगे, मतलब एक्सीडिंग लिमिट करोगे, देन वी कैन से इट इज अ स्ट्रेस टेस्ट। तो समवेयर सेम थिंग ना, एप्लीकेशन अगर डिजाइन है स्पेसिफिक लिमिट के लिए, अगर आप बियॉन्ड द लिमिट अप्लाई करके चेक करोगे कि हाउ द परफॉर्मेंस इट इज, देन इट कम्स अंडर स्ट्रेस, राइट? Even what is endurance? As per the time period, same time, expected limit, but multiple, we can say we are just exceeding the time limit. तो endurance का मतलब होता है see, endurance testing involve testing a system with a significant load exceeded over a significant period of time to discover how the system behave under sustained use. तो अगर कोई एप्लीकेशन का लिमिट है, हमने उसको बियॉन्ड द लिमिट, मतलब वी आर एक्सेप्टिंग द सेम रिक्वेस्ट, बट वही रिक्वेस्ट हमने कंटिन्यूअस टाइम पीरियड के साथ अप्लाई किया सॉफ्टवेयर पे, एंड अगर हमने परफॉर्मेंस को टेस्ट किया, देन इट कम्स अंडर इंड्योरेंस टेस्टिंग। तो व्हाट इज द गोल? गोल इज टू डिस्कवर दैट system behave under sustained use. So still you are using application throughout the day, still the application performance is a quality one. That is what you can do with the help of endurance. So this is to ensure that throughput or any response time after some long period of sustained activity are as good or better than beginning of the test. So might be possible ना, पहले तो performance good था, but now suppose after accessing the application for continuous time period, there might be possibility now your performance you are getting better, or somewhere performance might get degrade. तो अगर डिग्रेड होता है तो हम डेवलपर को सिंपल वी आर गोइंग टू आस्क डेवलपर टू फिक्स द प्रॉब्लम। बट अगर परफॉर्मेंस इंक्रीज हो रहा है तो वी कैन इजीली कंसिडर दैट एप्लीकेशन एज अ क्वालिटी एप्लीकेशन। सो इट इज ऑल्सो रेफर्ड एज अ सोक टेस्टिंग, एंड इसका सिंपल एग्जाम्पल है कि इफ सिस्टम इज डिजाइन टू वर्क फॉर ओनली 3 आवर्स, बट वॉट वी आर गोइंग टू डू, we will test the system endure for 6 hours of time to check the staying power of that system. तो बेसिकली स्टेबिलिटी क्या वो इतने टाइम पीरियड को हैंडल कर सकता है कंटिन्यूअसली, दैट आल्सो वी कैन टेस्ट, एंड देन इट कम्स अंडर सोक टेस्टिंग और इंड्योरेंस टेस्टिंग। पॉइंट्स आर क्लियर, राइट? लोड, स्ट्रेस, endurance. What is data volume? It's all about testing the application server performance in fact for large amount of data set. देखो, volume testing is also non-functional. Basically, these are comes under performance, guys. So which refers to testing the software application with a large amount of data set, okay, to be processed to check efficiency of the application. What is the main goal? The main goal is to, of this, to testing is monitor the performance of the application under varying database volume. तो यहाँ पे हम database के functionalities को validate करेंगे. Yes, Pawan, go ahead. So
in the stress testing, we are testing the same as well uh, by exceeding the limit of the user. Right. So what is the difference between stress and volume? Stress and Volume testing. okay, see, the point is different here. I'm Let's talk about client and the server. See, objective is different. Instead of point, I will say objective is different. When it comes to the stress, अब देखो स्ट्रेस में क्या है, अगर इस सॉफ्टवेयर का लिमिट है, जैसे मैंने सेम एग्जांपल लिया है, 100 यूजर एट ए टाइम दे कैन एक्सेस, राइट? तो बियॉन्ड द लिमिट यू आर जस्ट टेस्टिंग द एप्लीकेशन, तो दैट इज व्हाट स्ट्रेस। मतलब मैं क्या करूंगी, 100 यूजर का तो लोड दूंगी ही दूंगी, बट आई विल ट्राई फॉर नेक्स्ट लिमिट लाइक 101 यूजर पे मेरा सॉफ्टवेयर का परफॉर्मेंस क्या है, देन इट इज कॉल्ड स्ट्रेस। ठीक है। वॉल्यूम अलग है। वॉल्यूम का मतलब होता है आप अपने सॉफ्टवेयर के मतलब सर्वर पे ये टेस्ट करोगे कि हाउ मच डेटा इट इज हैंडलिंग और हाउ स्मूथली इट इज हैंडलिंग दैट लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा सेट। तो वी आर नॉट एक्सीडिंग द लिमिट। Here we are testing server performance with respect to large amount of data set. That is a big difference. Are you getting my point? It's not about a limit. In stress, beyond the limit, you are applying the software load and you are testing it. तो वो अलग बात है। बट वॉल्यूम का मीनिंग ही अलग है। यहाँ पे आप लोग लिमिट कितना है, कितने टाइम के लिए हो रहा है, वो नहीं चेक करोगे। तो वेन एवर यू विल पास अ रिक्वेस्ट, वो लोड में होगा या इंड्योरेंस में होगा या आपके स्ट्रेस में होगा। तो रिक्वेस्ट जब हम पास करते हैं तो एक्चुअली वी आर शेयरिंग सम डेटा टू अवर सर्वर। तो सर्वर हैज टू बी कैपेबल टू हैंडल दैट डेटा टू, राइट? तो मतलब बैकएंड साइड पे फ्रंट एंड साइड पे दोनों वैसे टेस्टिंग करना इंपॉर्टेंट है। तो जैसे आप टाइम के अकॉर्डिंग टेस्ट करोगे वैसे आपको डेटा को भी टेस्ट करना इंपॉर्टेंट है कि यस, सर्वर इज हैंडलिंग द लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा सेट and even server is providing accurate response to that particular request with respect to data. That is called volume test. Got it? So stress ka point of view objective is totally different. Volume testing is related to data. We are not testing any kind of limit or exceeding limit, nothing. It's all about large amount of data, how your server is able to handle. That is what we are testing. तो परफॉर्मेंस का मतलब ही वही है कि आप एक पॉइंट को टेस्ट नहीं करोगे ना। आप रिक्वेस्ट जब पास करते हो तो डेटा कैसे हैंडल हो रहा है सर्वर से, इतने नंबर ऑफ रिक्वेस्ट को सर्वर कैसे हैंडल करेगा। इज इट, अगर मल्टीपल यूजर ने रिक्वेस्ट पास किया है बट सपोज कंटिन्यूअस टाइम पीरियड के लिए कोई रिक्वेस्ट पास हुआ है, तो हाउ द सर्वर इज रिस्पॉन्डिंग टू दैट यूजर, दैट इज व्हाट परफॉर्मेंस। तो ये एक पॉइंट नहीं है, इसीलिए यहाँ पे मल्टीपल टाइप्स अवेलेबल है। गॉट इट? तो performance testing, if you are doing volume, it is completely different where you are testing performance of the server with respect to large amount of data set. And that's the reason the point is written here. The main goal is what? See, main goal of testing is to monitor the performance of application under varying database volume. तो यहाँ पे कोई रिक्वेस्ट की बात ही नहीं है। रिक्वेस्ट जो भी हो, एक्सपेक्टेड जो भी वर्कलोड हो या बियॉन्ड वर्कलोड हो, वॉट एवर इट इज, द डेटा ऑल्सो हैंडल बाई द सर्वर। तो सिंपल है ना, डेटा आप जो भी शेयर करोगे सर्वर हैज टू स्टोर इट समवेयर इन द डेटाबेस। तो फिर डेटाबेस का भी कैपेसिटी टेस्ट करना इंपॉर्टेंट है, यस और नो? एंड देन इट इज कॉल्ड वॉल्यूम टेस्टिंग। इजी? So tests are conducted once the database is loaded with the required volume of data. See this point. जब डेटाबेस रेडी होगा तब आप लोग इसके ऊपर टेस्टिंग कर सकते हो कि चलो फाइन, when the database is loaded with the same volume or required volume of data, then we can test the performance of that server. Even application performance during database update, data retrieval, it is also checked with volume of the data. So multiple user, many user, they are trying to open their account, they are trying to check their result, so they are sharing some data. So application should respond valid even for that every request. And that's the reason it is related to data, guys, not about any request or any response in the form of number of users or limit. It's all about whatever limit it is. तो फिर ये लो टेस्टिंग होने दो, स्ट्रेस होने दो, जैसे लाइव इसमें होता है, राइट? यूनिवर्सिटी रिजल्ट ये लाइव है, इसमें मेनी यूजर्स they can reach out, they can try to check their result. तो इस केस में हम डेटा पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे that how software is behaving for that data, and so it comes under volume. तो this type of testing
mainly needed, okay, the transaction processing system, like capturing real time sales. The best example, स्टॉक मार्केट प्रेडिक्शन आपने देखा है, राइट? तो स्टॉक मार्केट प्रेडिक्शन पे क्या होता है? सडन चेंजेस, ओके, दैट वी कैन टेक एग्जांपल फॉर स्पाइक, सडन चेंजेस. बट समवेयर यू नीड अ प्रोसेसिंग, सम ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम, जहां पे आप लाइव डेटा को कैप्चर कर सकते हो, रियल टाइम सेल्स को चेक कर सकते हो, दैट्स कम्स अंडर वॉल्यूम टेस्टिंग. Or you can write a best example that whenever you check that how the server is responding for multiple amount of data set, right, that performance is comes under volume test, right? So this is how you need to understand the topic, because these are the different types available for performance. तो सर्वर परफॉर्मेंस हम एक लिमिट के साथ टेस्ट कर सकते हैं, लिमिट ऑफ यूजर रिक्वेस्ट. beyond the limit of user request, then it is stress. Same user request or user limit but for continuous time period, वो होता है soak. And last is test the application performance with respect to large amount of data set. डेटा पे टेस्टिंग करेंगे तो वो होता है वॉल्यूम टेस्टिंग. लास्ट वी हैव अ स्पाइक. स्पाइक इज टू स्पेशल बिकॉज यहाँ पे जनरली आप ये टेस्ट करोगे कि अगर लिमिट है कोई, ठीक है, वॉट एवर लिमिट डिफाइन इट इज, बट देर माइट बी प्रॉब्लम और देर माइट बी पॉसिबिलिटी कि सडन चेंजेस, सम पीक पीरियड चेंजेस हो सकते हैं एप्लीकेशन में. तो उस केस में how the number of access or number of user they are trying to access the application, whether that user is able to get the access or not, that is also important for testing. जैसे लाइव मैच चल रही है तो उस केस में सडनली यूजर का लोड इंक्रीज हुआ, सडनली डिक्रीज हुआ, तो भी आपका एप्लीकेशन स्टेबल होना चाहिए. सो इट कम्स अंडर स्पाइक. तो यहाँ पे आप सिंपल, देयर आर मेनी लाइव एग्जांपल्स यू कैन टेक, बट लेट मी एक्सप्लेन फर्स्ट व्हाट इज स्पाइक. So spike testing, it is a form of testing process in which application is tested for unusual, you can see, increments and decrements in the load. तो possible increment भी हो सकता है, decrement भी हो सकता है. And system is unexpectedly loaded. Somewhere system is unexpectedly loaded and unloaded, guys. Then it is called spike testing. तो spike testing का main goal यही है. It is usually done by unexpectedly increasing number of load generated by user, okay, by very, we can say, enormous amount or observing dramatic behavior of the system. Generally it may vary. तो जनरली क्या होता है कि अनएक्सपेक्टेडली अगर लोड होता है सिस्टम पे तो देर माइट बी पॉसिबिलिटी ना, कुछ एरर मस ऑपरेशंस हो सकता है, मतलब सडनली यू माइट गेट सम प्रॉब्लम्स फ्रॉम दिस सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन. आपका सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन हैंग हो रहा है बिकॉज मेनी पीपल दे आर ट्राइंग टू रीच आउट, राइट? तो पॉसिबल कि सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन क्रैश हुआ, हैंग हुआ, राइट? So we can able to see the some dramatic behavior of the system. So what is the goal? Goal is to, spike testing is to regulate whether the performance is or performance is, okay, performance will deteriorate or the system will always fail or somewhere system is able to hold that dramatic changes in the load. तो possible positive expectation भी है और possible negative आपको भी मिल सकता है. मतलब sometimes there might be possibility कि application completely fail हो रहा है because there are lot of users, they are trying to reach out the application, or sometimes there is a possibility कि application still it's working, it is holding or it is accepting that load. Possible. The spike is totally depends on the variation. Suddenly, for any sudden change, we can check performance of the software. Then it is called spike test. Easy. Now, what does example? I mean, what example it is written? See, consider a system is designed to handle 1000 concurrent user. As soon as one more user try to enter, definitely system should provide some message to the particular user that system is already full and nobody can log in at that moment. But suppose यहाँ पे कोई variation है, तो this is the example. It's different for limit, right? But somewhere for spike, you can take a best example for live anything, live match, live series, live movie, whatever it is. तो कुछ live अगर होता है तो many user they can try to reach out, and in that case your performance of this application must be stable. When you test that, that's called spike test. And इसीलिए ये जो पूरे टेस्टिंग टाइप्स है ये नॉन फंक्शनल के हैं, तो हम लोग ऐसे ही टेस्ट नहीं करते. एज पर द रिक्वायरमेंट ओनली वी डू टेस्टिंग. इसके लिए स्पेशल रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट आपको मिलेगा, प्लान डॉक्यूमेंट मिलेगा, एंड देन वी कैन गो फॉर दिस काइंड ऑफ टेस्टिंग टाइप. आर यू गेटिंग माय पॉइंट?
तो spike, endurance, volume, even your load, stress, all this comes under performance testing. J मीटर के थ्रू आप ये सारे टाइप परफॉर्म कर सकते हो, but J meter is used for performance testing, so it is important how exactly we do performance testing. तो यहाँ पे whenever you are installing J meter on a local machine and whenever you are testing that feature, what could be the process, कैसे करना है and all that I will cover at the practical, okay, whenever I will be taking the practical session. But for now you need to understand what is performance testing and how many different types. तो simple shortcut to remember, वॉल्यूम का मतलब है लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा सेट के साथ टेस्ट करोगे, लोड का मतलब है लार्ज अमाउंट ऑफ यूजर, और यू कैन जस्ट से एक्सपेक्टेड यूजर, ओके, एक्सपेक्टेड यूजर और लिमिट. स्ट्रेस का मतलब होता है बियॉन्ड, तो टू मेनी यूजर, टू मच डेटा, टू लिटर टाइम एंड टू लिटर, राइट. तो बेसिकली इट्स ऑल अबाउट कि कम टाइम में कुछ ज्यादा काम करना है और मल्टीपल यूजर के साथ टेस्ट करना है, बहुत सारे डेटा के साथ टेस्ट करना है, देन इट कम्स अंडर अ स्ट्रेस. तो आई थिंक पवन, नाउ यू आर क्लियर विद द कंसेप्ट. स्ट्रेस दोनों में आएगा, राइट, बट जहां पे आप वॉल्यूम करोगे वहां पे आपको लिमिट को फोकस नहीं करना है. यू आर टेस्टिंग द सर्वर परफॉर्मेंस ओनली, दैट वेदर योर सर्वर इज एक्सेप्टिंग दैट लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा. बट स्ट्रेस में पॉसिबल है कि सर्वर का लिमिट है कुछ, लाइक लेट्स से ओनली 10 GB डेटा सर्वर कैन हैंडल, लेट्स टेक एग्जांपल. तो हम लोग क्या करेंगे, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को ट्राई करेंगे एंड देन वी विल चेक द परफॉर्मेंस. तो समटाइम्स वो आइदर हैंडल करेगा, अदरवाइज वो कंप्लीटली फेल होगा. तो वॉट एवर डिग्रेडेशन यू विल गेट कि फेल हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, हैंग हो रहा है, तो इमीडिएटली वी विल रिपोर्ट टू द डेवलपर टीम एंड डेवलपर टीम फिक्स द इशू. देन ओनली यू कैन से yes, your quality, your application is what, it is a quality application. Got it everybody? तो सबसे इंपॉर्टेंट नॉन फंक्शनल में परफॉर्मेंस टेस्टिंग है, एंड सो आई विल बी कवरिंग इट प्रैक्टिकली टू. But try to understand the different types that comes under performance testing. I hope today whatever theoretical concept it is clear to all. Yes or no? Yes. Okay, fine. So guys, please go through one more time PPT. I will be sharing. Those are new candidates. I think you don't have this kind of data, right? So I will be sharing the data in the WhatsApp group. Kindly download it and you can use for your reference. Okay? Fine. Okay, any doubt, any query till this? No, ma'am. Okay, great. तो guys, manual testing is only theory. Try to focus कि आपको theoretical concepts को learn करना है just to crack your interview, right? And the main focus should be like how to prepare test cases. So I have asked you yesterday to prepare test cases. Nobody has shared the data. Try मैम it. मैंने किया है, Okay. पर या वो मैंने आप लोग, उसी में बनाया है. अच्छा, नो इश्यूज, नो इश्यूज. लेकिन आप क्या करो ना, जब आप शेयर करते हो ना, तो जस्ट चेंज, रीनेम द फाइल विथ योर नेम एंड देन यू कैन शेयर द फाइल सो आई कैन चेक इट. मैम मैंने उसी के टेस्ट, अंदर एडिट किया, उसको शेयर नहीं किया है. हाँ, सॉरी. that's okay. Okay, that's okay. But whenever you'll be sharing it, what you need to do, see, I will be taking project also. Do not worry. तो project का तो I'm expecting everybody should try that project. But what I'm expecting कि जब हम basic अभी कोई scenario learn करेंगे, right? तो at least you should try how you can prepare the test cases for the same. Even for today's topic, prepare some example. Try to write test cases for load, stress, endurance, volume testing, right? So you will understand कि अच्छा हम क्या test करेंगे, कैसे test करेंगे. Take any example and you can check it, okay, with this kind of testing. Fine, we will see it tomorrow again and then we will continue with the theoretical topic, and even if possible tomorrow I'll explain you what is JMeter and how you can conduct performance testing using JMeter. तो ये tool क्या है, कैसे install करना है, कैसे इसको use करना है, we will see that point practically. Got it? Okay, so everybody clear? Fine. So let's continue the remaining topic tomorrow. Thank you so much. Bye everyone. Take care. Have a nice day. Thank you. Bye. Thank you, ma'am.